Hello everyone. Today I am going to do the assignment of chapter 2 polynomials of class 9th. In this assignment all types of MCQ type questions and subjective type questions related to 2, 3 or 4 marks are given. All the questions will be done in this assignment. So let's start doing the multiple choice questions. Now, in this assignment, although the questions are multiple type, but you should do the practice in this way that if these questions are asked in what, when, why, true, false, or even fill in the blanks form, you must be able to do these with perfection. So question number 1. Question number 1 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to minus 1. So you can see here this is p of x, polynomial p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3. So we will find its value at x equal to minus 1. So we will find p of minus 1. तो जहां जहां भी x है वहां वहां आप माइनस 1 पुट कर दो तो ये बनेगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3. तो 5 इंटू माइनस 1 बनेगा माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा प्लस 3. तो आपके पास ये आ गया माइनस 5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3. फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3. तो माइनस 5 और माइनस 4 दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे माइनस 9 प्लस 3 एंड माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6. So in the assignment this answer is A part, so we can write answer A, that is minus 6. Now we will do second question of this assignment. Here the question is what is the 0 of 0 polynomial? So 0 of 0 polynomial is always every real number. So you will write here 0 of 0 of 0 polynomial is every real number. So here the option which is true, C option. So this is option number C is correct of question number 2. Now is question number 3. So question number 3 is अंडर रूट 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. तो आपको यहां अंडर रूट 3 की डिग्री लिखनी है. तो डिग्री ऑफ अंडर रूट 3, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो डिग्री ऑफ 3 इज 0 और 0 जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए है. दैट ऑप्शन नंबर ए इज 0. डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. नाउ इज फोर्थ क्वेश्चन. So fourth question is degree of 0 polynomial. तो degree of 0 polynomial is not defined. तो आप यहां लिखेंगे degree of 0 polynomial. Degree of 0 polynomial is not defined. तो यहां क्वेश्चन में इसकी ऑप्शन जो दे रखी है वो सी ऑप्शन है. दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दैट डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 5x पावर 4 माइनस x पावर 5 इज. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट पावर कहां पर है. तो ये हाईएस्ट पावर 5 है माइनस x पावर 5 टर्म है. तो इसका जो कोफिशिएंट है वो होगा -1. सो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, सो -x पावर 5,
So here it is -1 answer will be there. In the options, here answer is not -1. So you can correct it. The question I am writing here, coefficient of highest power, coefficient of highest power of x in the polynomial, the polynomial is what? 2x cube minus 4x square plus 5x power 4 minus x power 5 is. सबसे पहले तो आप वो टर्म देखो जिसमें हाईएस्ट पावर है, वो है x माइनस एक्स पावर 5. तो उसमें कॉफिशिएंट देखना है जो कि हाईएस्ट पावर का है. तो माइनस एक्स पावर 5 कैन बी रिटन एज -1 इंटू एक्स पावर 5. तो यहां आंसर जो है वो क्या होगा? -1. तो आप इसमें कोई ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप यहां सी ऑप्शन को -1 कर लो. राइट नाउ question number 6. The question number 6 is, if a minus b is equal to -8 and ab is equal to -12, then a cube minus b cube is equal to. तो आपके पास a minus b कितना दे रखा है? -8. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. उसके बाद आपके पास ab दे रखा है -12. राइट, ये आप इसको 2 नंबर दे दो. फाइंड आउट क्या करना आपने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. नाउ you have the value of a minus b, you have the value of a square, ab, you have the value of ab, but you do not have the value of a square plus b square. So for finding the value of a square plus b square, what you have to do? a minus b is given equal to -8. आप क्या करो? इसका दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो. a minus b का होल स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू -8 का होल स्क्वेयर. तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या बनता है? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab एंड -8 का स्क्वेयर क्या होगा? 64. अब आप क्या करो? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को तो सेम लिख लो. -2 इंटू ए बी की वैल्यू ये देखो क्या दी है? -12. पुट कर दो, इट इज इक्वल टू 64. तो यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट बनेगा प्लस 12 2 जार 24 इज इक्वल टू 64. तो यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बनेगा 64 माइनस 24 यानी 40. अब आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू भी आ गई. अब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर से लिखेंगे. इट वॉज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो आप क्या करो? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को इकट्ठा लिख दो प्लस ए बी. अब जो भी वैल्यूज हैं आप सारी पुट कर दो. ए माइनस बी की क्या वैल्यू थी? -8, आपने ब्रैकेट में लिख दी. इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की क्या वैल्यू आई? 40, आपने लिख दी. प्लस ए बी की क्या वैल्यू है आपके पास? -12. तो स्मॉल ब्रैकेट में ये -12 भी आपने लिख दिया. अब -8 इंटू 40 प्लस इंटू माइनस -12. राइट, तो -8 मल्टीप्लाइड 40 -12. 10 - 2 is 8, 3 - 1 is 2, 28. तो अब आंसर माइनस में आएगा. 8 8 जार 64, 6 इज कैरी, 8 2 जार 16 एंड 6 22. तो आंसर क्या है इसका? -224. क्वेश्चन नंबर 7. द वैल्यू ऑफ 2.3 होल क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 होल स्क्वेयर प्लस 0.69 प्लस 0.09 is. So see the question.
This is question number 7. It is 2.3 whole cube minus 0.027 upon 2.3 whole square, then plus 0.69 plus 0.09. तो 2.3 का होल क्यूब, इसको 2.3 का होल क्यूब ही लिखो, माइनस 0.027 को 0.3 का होल क्यूब लिख दो, अपॉन 2.3 होल स्क्वायर को 2.3 का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस, अब प्लस लगाकर बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और थोड़ा सा आगे जाकर के लिख दो 0.09 को। क्या लिखोगे 0.09 को? 0.3 का होल स्क्वायर, और जो बीच में आपने स्पेस छोड़ा था 2.3 का होल स्क्वायर के बाद, वहां पर लिखेंगे 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2.3 और 0.3 मल्टीप्लाई करने पर 0.69 बनाते हैं, जो कि सेंट्रल टर्म है। अब न्यूमिरेटर में आप आइडेंटिटी लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, तो ए है 2.3 माइनस 0.3, तो आपने एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 2.3 माइनस 0.3, स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. So here it will be 2.3 whole square then प्लस ए बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ए बी होगा 2.3 इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वेयर, सो 0.3 का होल स्क्वेयर. स्क्वेयर ब्रैकेट को क्लोज कर दो और पूरे का ओवर सेम लिख दो, ये 2.3 का स्क्वेयर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वेयर. तो डिनोमिनेटर में जो ये 2.3 का होल स्क्वेयर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वेयर, इसको आप कैंसिल कर दोगे. न्यूमिनेटर में भी ये सेम चीज है, तो आपके पास बचा क्या? 2.3 माइनस 0.3. तो आप 2.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2. और ये ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए दे रखी है, ऑप्शन ए. तो कुल मिलाकर आपको इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी याद करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. मैं ये आइडेंटिटी लिख भी रहा हूं. इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. Without knowing this identity, you will not be able to do this question. That's why in polynomials chapter, it is very, very important to learn the identities. Now question number 8. So question number 8 I am showing. This is when x power 31 plus 31 is divided by x plus 1, then a remainder is. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आपने रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना. तो p ऑफ x क्या है? x पावर 31 प्लस 31. तो इसको किससे डिवाइड करने को बोला गया है? x प्लस 1 से. तो आप साइड में x प्लस 1 पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट कर लो. कैसे? x प्लस 1 को जीरो के इक्वल करके. तो x किसके बराबर आ गया? -1. इसका मतलब -1 जो है वो जीरो है किसकी? x प्लस 1 की. तो अब आप यहां लिखेंगे कि व्हेन x पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय किसके साथ? x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 कॉमा द रिमाइंडर इज. जब x पावर 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ -1. और ये किसके अकॉर्डिंग है? रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो अब देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू x पावर 31 है तो ये बनेगा -1 पावर 31
प्लस 31। माइनस की पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आता है, तो ये बना -1 प्लस 31। तो 31 में से आप 1 माइनस करो, क्या आएगा? प्लस का 31। तो P ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस 31, क्योंकि 31 - 1 क्या हो जाएगा? 30। इट इज 30। 31 - 1 इज 30। तो आप लिख दें देयरफॉर रिमाइंडर इट इज इक्वल टू 30 और आंसर में ऑप्शन बी है ये, तो आप ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे, दैट आंसर इज 30। सो हियर इन दिस क्वेश्चन द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वाज देयर। नाउ वी विल स्टार्ट विद subjective type questions. Subjective type questions. Subjective type questions. So question number 1 of subjective type. See the question. Show that x plus 3 is a factor of 69 plus 11x minus x square plus x cube. तो फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन होगा। P ऑफ x आपको जो दे रखा है उसको आप लिख लेंगे। P ऑफ x इज इक्वल टू 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। अब आपने क्या शो करना है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो आप साइड में x प्लस 3 को 0 के इक्वल करो। क्यों कर रही हो? क्योंकि आप इसकी 0 फाइंड आउट करने वाले हो। तो x इज इक्वल टू -3। तो ये -3 जो है वो x प्लस 3 की क्या होगी? 0 होगी। तो अब यहां एक लाइन लिखेंगे कि x प्लस 3 विल बी a factor of x plus 3 will be a factor of P of x if, कब होगा ये इसका फैक्टर? इफ P ऑफ दिस -3 इज इक्वल टू 0। P ऑफ -3 है क्या? बेसिकली इट इज अ रिमाइंडर। तो अगर कभी भी किसी चीज का रिमाइंडर 0 हो जाए तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर बन जाता है। तो अब आप यहां से P ऑफ -3 फाइंड आउट करो। तो जहां जहां x है ऊपर पॉलिनोमियल में, वहां वहां -3 पुट करोगे। तो 69 प्लस 11 इंटू -3 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो ये बनेगा -3 का स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब है, तो ये बनेगा -3 का क्यूब। 69 तो सेम रहेगा, 11 इंटू -3 इज -33 माइनस -3 का स्क्वेयर जो है वो +9 प्लस -3 का क्यूब जो है वो -27 बनेगा। तो ये 69 -33 -9 प्लस इंटू -27। तो 69 एक अकेली टर्म है प्लस की, बाकी 33, 9 और 27 तो नेगेटिव टर्म्स हैं। अब आप इनको ऐड कर देंगे। 33 प्लस 9 इज 42 और 42 और 27 कितने बने? 69 माइनस के। तो 69 माइनस 69 क्या बना? ये 0। तो आपके पास P ऑफ -3 कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस P ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore x plus 3 is a factor of, therefore x plus 3 is a factor of P of x equal to 69 plus 11x minus x square plus x cube। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट करते हैं कि कब कोई दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर।
तो स्टार्ट करते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर देन माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो यहां दो आइडेंटिटीज यूज होगी, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर माइनस का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जार 4 माइनस 4x माइनस ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जार 4 प्लस 4x। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, बाहर माइनस है, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x। जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल, क्या बचा माइनस 4x और माइनस 4x, तो ये बन गए माइनस 8x। तो P ऑफ x की वैल्यू क्या आ चुकी, माइनस 8x। तो इसकी जीरो कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ माइनस 8x, पुट माइनस 8x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 अपॉन माइनस 8। तो आंसर क्या होगा आपका 0। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी जीरो क्या आ गई, 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो क्वेश्चन ये कैसे करना है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, और m क्यूब किसका है, m का। तो आप लिखेंगे 4m का होल क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब है, तो आप इसको ब्रैकेट में माइनस 7n का होल क्यूब लिखेंगे। अब यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब माइनस b क्यूब की। तो यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इट इज इक्वल टू a माइनस बी, तो a है 4m माइनस b है 7n। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 4m माइनस 7n, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे, a स्क्वायर है तो 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4m मल्टीप्लाइड 7n प्लस बी स्क्वायर हो, तो ये 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 4m माइनस 7n, देन स्क्वायर ब्रैकेट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल ब्रैकेट, 4 4s are 16, तो 16m स्क्वायर प्लस 4 7s are 28mn प्लस 7 7s are 49n स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। Now is question number 4. This question is also very important. L plus, ये देखो क्वेश्चन है L प्लस m प्लस n किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। तो आपने प्रूव करना है L स्क्वायर अपॉन mn प्लस m स्क्वायर अपॉन nl प्लस n स्क्वायर अपॉन ln इज इक्वल टू 3। तो क्या दे रखा है आपको, L प्लस m प्लस n की वैल्यू क्या, 0, राइट।
तो अब आप लिखेंगे, जो आपने प्रूव करना है, LHS लिख लो इसको, LHS। LHS में आपको दे रखा है L² अपॉन MN प्लस M² अपॉन NL प्लस N² अपॉन LM। तो आप देख सकते हैं LCM आएगा LMN, LMN। अब LMN को MN से डिवाइड करोगे तो L बचेगा, L को L² से मल्टीप्लाई करोगे तो L³ आएगा, प्लस LMN को NL से डिवाइड करोगे तो M आएगा, और M को M² से मल्टीप्लाई करोगे तो M³ आएगा, प्लस LMN को LM से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, N। N को N² से मल्टीप्लाई करोगे तो N³ आएगा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है जो आपने पॉलिनोमियल में की थी, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो 3abc के बराबर होता है। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी की जगह l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 है। तो ऐसे केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ की जगह L³ प्लस M³ प्लस N³ है, तो ये बन जाएगा 3LMN अपॉन LMN। तो यहां LMN को LMN से कैंसिल कर दो तो आपके पास आंसर आ गया 3, और यही आंसर जो है वो आपके RHS साइड में है। तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified, hence verified। फिर से रिपीट करूंगा, इसमें आइडेंटिटी क्या यूज की गई कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी आ रही है, इसलिए आपको बार बार यही बोला जाता है कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, पॉलिनोमियल में जो भी आइडेंटिटीज दे रखी हैं उनको अच्छे से याद कर लो। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द असाइनमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको शो कर रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस kx प्लस 6। तो आप लिखेंगे यहां पर लेट p ऑफ x, यानी जो पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 3x² प्लस kx प्लस 6। अब फैक्टर क्या दे रखा है इस पॉलिनोमियल का, x प्लस 3। तो आप x प्लस 3 को साइड में 0 के इक्वल कर दो, तो यहां से x क्या आ गया, -3। तो आप क्या बोलेंगे कि -3 इज अ 0 ऑफ x प्लस 3। तो अब इसने ऑलरेडी दे ही रखा है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो मैं लिखूंगा कि सिंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, since x plus 3 is a factor of p of x, therefore p of -3 is equal to 0। क्योंकि यह p of -3 equal to 0, वही बात, क्योंकि जब भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवाइजर जो है वो उसका फैक्टर होता है। तो अब आप क्या करो, इंप्लाइज का साइन -3 वहां पुट कर देना जहां जहां भी x है। तो 3 इंटू -3 का स्क्वेयर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 0 को छोड़ना नहीं है एंड तक। तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 इंटू 3 इज 27, k इंटू -3 इज -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 27 में 6 को ऐड कर दो, क्या आएगा 33। तो 33 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। यहां से -3k जो है वो किसके बराबर बनेगा, -33 के, क्योंकि प्लस का 33 राइट में लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, माइनस का बनेगा। माइनस माइनस आमने सामने कैंसल, k विल बी इक्वल टू
33 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू 11। तो k की वैल्यू क्या आ गई 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस 13x प्लस 15 when divided by x minus 1 gives 2 as the remainder। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख लिया जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र देन प्लस 13x एंड प्लस 15। नाउ when it is divided by x minus 1 तो आप x minus 1 को साइड में 0 के इक्वल कर लो। तो x की क्या वैल्यू आएगी 1। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 is a zero of this polynomial। तो अब आप लिखेंगे it is given that when p of x is divided by when p of x is divided by x minus 1 comma the remainder is p of 1, the remainder is p of 1। तो इसका remainder is p of 1 but it is given that it is 2 of the remainder। so remainder यहां पर दे रखा है remainder is 2 और ये रिमाइंडर 2 दे रखा है और एज पर रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या बनेगा p ऑफ 1। तो आप क्या करेंगे देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों किया? p ऑफ 1 इज अननोन रिमाइंडर और यहां रिमाइंडर जो है वो 2 दे रखा है। दोनों को आप क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। इंप्लाइज इस 1 को वहां पुट कर देना है p ऑफ x में जहां जहां पर x था। तो x क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र सो a इंटू 1 का स्क्र देन प्लस 13x सो 13 इंटू 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब बनेगा 1 माइनस a क्योंकि 1 स्क्र तो 1 ही होता है प्लस 13 प्लस 15 और जो 2 राइट में पड़ा हुआ उसको लेफ्ट में ले आओ -2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 13 इज 14, 14 प्लस 15 29, 29 में से 2 माइनस कर दो तो ये बनेगा 27। तो 27 माइनस a 0 के बराबर और यहां से माइनस a जो है वो बना -27 माइनस माइनस कट गई a की वैल्यू क्या आ गई 27। तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू that when some polynomial is given and it is divided by some another polynomial and the remainder is given, then how to find the value of a or k whatsoever is given। now is question number 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड करूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में से है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2k लीव द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 3 then find the value of k। अब आपके पास दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और दोनों ही पॉलिनोमियल को जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा। तो ऐसे केस में आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 5। ये तो हो गया एक पॉलिनोमियल। एंड g ऑफ x, दूसरे पॉलिनोमियल को आप g ऑफ x बोल दो एंड दैट इज x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र देन प्लस 13x
ये पॉलिनोमियल फर्स्ट था 2x³ प्लस kx² प्लस 3x-5। सेकेंड पॉलिनोमियल में थोड़ी सी करेक्शन, दिस इज x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 2k। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किससे करना है? x-3 से। तो आप x-3 को 0 के इक्वल कर दो, x क्या आएगा? 3। इसका मतलब 3 जो है वो x-3 की क्या है? 0 है। अब आप यहां एक लाइन लिखेंगे कि व्हेन p ऑफ x एंड g ऑफ x, when p of x and g of x both are divided by x-3 comma the remainders are equal, क्यों इक्वल है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही ये गिवन है। तो देयरफॉर अगर p ऑफ x को हम x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ 3। और g ऑफ x को अगर x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? g ऑफ 3। तो p ऑफ 3 और g ऑफ 3 को आप क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, राइट। नाउ इट इंप्लाइज ये 3 जो है वो आपने p ऑफ x में जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देना है। तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस k इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये 3 जो है जहां जहां gx में x है वहां वहां इसको पुट कर देना है। x³ है तो 3 का क्यूब बना, प्लस x² है तो प्लस 3 का स्क्वेयर बना, माइनस 2 इंटू 3 क्योंकि 2x था प्लस 2k। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8, 8 2 जार 16 प्लस 3 3 जार 9k प्लस 3 3 जार 9 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 3 क्यूब इज 27 प्लस 3 स्क्वेयर इज 9 माइनस 6 प्लस 2k। नाउ सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 9 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, तो 20 प्लस 9 के आपके पास लेफ्ट साइड में आ गया। 27 प्लस 9 36, 36 में से 6 माइनस कर दो 30 प्लस 2k। अब आप क्या करो? k की सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ और कांस्टेंट टर्म्स को राइट में ले जाओ। 9k प्लस का 2k जो राइट में था लेफ्ट में आ गया माइनस 2k। इट इज इक्वल टू 30 और जो 20 लेफ्ट में उसको राइट में ले जाओ माइनस 20। तो 9k में से 2k माइनस होगा तो 7k इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इज 10। सो k वैल्यू इज 10/7। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इस क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली। फाइंड m and n if x plus 2 and x plus 1 are the factors of x³ plus 3x² minus 2mx plus n। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट p of x it is equal to, what is p of x? It is x³ plus 3x² minus 2mx plus n। Now this polynomial has two factors, एक तो x plus 2 है, तो आप क्या करो? रफ वर्क में x plus 2 को 0 के इक्वल कर लो। तो x किसके बराबर आ गया? -2 के। इसका मतलब -2 जो है वो x plus 2 की 0 है। इसी तरह से आप x plus 1 को भी 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो आप क्या बोलेंगे कि -1 जो है वो x plus 1 की क्या है? 0। तो अब आप लिखेंगे कि when since
x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, बारी बारी से करेंगे ये, सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बोला x प्लस 2 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, क्यों? क्योंकि गिवन है। तो देयरफॉर p ऑफ, ये -2 ब्रैकेट में, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। p ऑफ -2 का मतलब क्या है? p ऑफ -2 का मतलब है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 होगा ही होगा क्योंकि x प्लस 2 उसका फैक्टर है। अब आप क्या करो, इस -2 को जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दो। तो x क्यूब -2 का क्यूब प्लस 3x², सो 3 इंटू -2 का स्क्वेयर माइनस 2m इंटू x है तो x है -2 प्लस n इज इक्वल टू 0। अब -2 क्यूब क्या है? -8, -2 का स्क्वेयर तो बना +4, 4 इंटू 3 12, तो -8 प्लस 12, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 2 जार 4m बन गया ये, प्लस n इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 4 प्लस का 4, सो 4 प्लस 4m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4m प्लस n इज इक्वल टू प्लस का 4 राइट में चला जाएगा, माइनस का 4 बनेगा, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो x प्लस 1 is a factor of, also x plus 1 is a factor of p of x। x plus 1 जो है वो p of x का भी क्या है? फैक्टर है। तो therefore p of -1 will be equal to 0। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस पुट कर दो p of x में। x क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वेयर माइनस 2m इंटू -1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो -1 का क्यूब है -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये बना +3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 क्या बनेगा? 2, 2 प्लस 2m प्लस n is equal to 0। It implies 2m plus n is equal to -2। अब आप इसको क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या करेंगे? 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। तो 1 इक्वेशन क्या थी? 4m प्लस n किसके इक्वल? -4 के। और इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख देंगे, 2m प्लस n इज इक्वल टू -2। अब आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये n तो सेम है लेकिन साइन इनके सेम है, तो सब्ट्रैक्शन की तो साइंस चेंज हो गए। तो n और n को कैंसिल करेंगे, 4m में से 2m माइनस होगा, 2m -4 प्लस 2 -2, सो m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2। तो क्या आ गई m की वैल्यू? -1। अब आप इस m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट m इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 4m प्लस n, तो 4 इंटू -1 प्लस n इज इक्वल टू -4। तो -4 प्लस n इज इक्वल टू -4। तो n विल बी इक्वल टू -4, माइनस का 4 राइट में गया, प्लस का 4 बना, तो -4 प्लस 4 क्या होता है? 0। तो देयरफॉर m is equal to -1 and n is equal to 0. Now after this we will do question number 9.
So C, this is question number 9. Now we will do question number 9. Factorize 2x square plus 7x plus 3 by splitting the middle term. Here spelling of is written factorizing. It is factorize 2x square plus 7x plus 3 by splitting the middle term. So question number 9. This is 2x square plus 7x plus 3. So how this question will be done? The coefficient of x square is 2 and the constant term is 3. So 2 into 3 is 6. अब आप कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और ऐड करें तो x का कोफिशिएंट 7 बने, तो वो होंगे 6 इंटू 1 6, और अगर 6 प्लस 1 को ऐड करें तो 7 आएगा. तो अब करते हैं स्टार्ट. It will be 2x square plus 6x plus x plus 3. अब इन दो में और इन दो में कुछ कॉमन आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x में 2x कॉमन आएगा, और अगर 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करें तो x, प्लस 6x को 2x से डिवाइड करें तो 3, प्लस इन दो में 1 कॉमन आएगा एंड इट इज x प्लस 3. सो इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 1 विल बी देयर एंड इन द अदर ब्रैकेट इट विल बी x प्लस 3. नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equal to r. So here is question number 10. Polynomial let p of x is equal to px square plus 5x plus r. Now there are given two factors. एक तो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2. इसका मतलब 2 इज द जीरो ऑफ x माइनस 2. और इसी तरह से आप x माइनस 1 बाई 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 1 बाई 2 भी px का फैक्टर है. तो 1 बाई 1 करेंगे सिंस x minus 2 is a factor of p of x. So therefore p of 2 will be equal to 0. अब आप जहां जहां p of x में x है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो ये बनेगा p इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0. तो 2 2s are 4p 4p प्लस 5 2s are 10 प्लस r is equal to 0. Now 4p plus 10 plus r is equal to 0. You can find from here that r is equal to minus 4p minus 10. Here you may need to write one more line, so here one line you can leave so that something to be written to make the result you can write that comfortably. Now here you will write since x minus 1 by 2 is also a factor of p of x. x माइनस 1 बाई 2 भी p of x का क्या है फैक्टर, तो देयरफॉर p of 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 0. तो अब आप 1 बाई 2 पुट करेंगे कहां जहां जहां x है, तो p इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वेयर देन प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r
will be equal to 0. Now we will solve it. 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो ये बनेगा 1/4p प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0. अब आप क्या करो, r को लेफ्ट साइड में रख लो, बाकी की सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ. तो प्लस 1/4p जब राइट में जाएगा तो माइनस 1/4p बनेगा. प्लस का 5/2 जब राइट में जाएगा तो माइनस 5/2 बनेगा. तो अब r इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4. 4 को 4 डिवाइड करेगा 1 इंटू माइनस p इज माइनस p. माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 5s are 10. Now cross multiply. It is 4r is equal to minus p minus 10. अब क्या करना है, 4r को यहीं रखो और माइनस p को लेफ्ट में ले आओ, प्लस p इज इक्वल टू माइनस 10. इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर दे दो 2. अब जब जो पहले किया था ये r इज इक्वल टू माइनस 4p माइनस 10, यहां भी आप क्या करो, r को यहीं रहने दो, माइनस 4p को लेफ्ट में लाओगे तो प्लस 4p बनेगा इज इक्वल टू माइनस 10. ये है इक्वेशन नंबर 1. अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखोगे तो r प्लस 4p माइनस 10 है और यहां पर 4r प्लस p जो है वो माइनस 10 है. मीन्स इक्वेशन 1 और 2 में दोनों ही तरफ माइनस 10 आ रहा है. तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2. तो राइट साइड में माइनस 10 है, आप इनकी लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दो. तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, r प्लस 4p, और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो है 4r प्लस p. अब p की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, 4p और ये p लेफ्ट में आएगा माइनस p इज इक्वल टू r, ये 4r और ये जो r है वो राइट में जाएगा माइनस r. तो 4p माइनस p क्या बना, 3p. 4r माइनस r क्या बना, 3r. तो यहां से 3 3 आमने सामने कैंसिल, देयरफॉर p इज इक्वल टू r. और यही आपने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, दैट इज p इज इक्वल टू r. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 आई एम शोइंग टू यू. इफ बोथ x minus 2 and x minus, this question number 10 we have done, 11 number question we will do. Factorize this. 2 under root 2 a cube plus 8b cube minus 27c cube plus 18 under root 2 abc. So let's start doing question number 11. This is 2 under root 2 a cube plus 8b cube minus 27c cube प्लस 18 अंडर रूट 2 ABC. तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 2 अंडर रूट 2 किसका क्यूब होगा. तो 2 अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 का क्यूब होता है. क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, ये देखो, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बना 2, तो 2 अंडर रूट 2 ही बना ना. तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2a का होल क्यूब. अपने माइंड में बोलोगे इसको a क्यूब, प्लस 8b क्यूब को 2b का होल क्यूब लिखोगे, माइंड में बोलोगे प्लस b क्यूब, प्लस माइनस 27c क्यूब को माइनस 3c का होल क्यूब लिखोगे, माइंड में बोलोगे प्लस c क्यूब. तो ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, देन प्लस 3abc. So 3 into under root 2a into 2b into minus 3c. So a cube plus b cube plus c cube plus 3ab
सी। अब √2a का होल क्यूब को सेम लिखेंगे, प्लस 2b का होल क्यूब को सेम लिखेंगे, प्लस -3c का होल क्यूब सेम लिखेंगे। ये जो माइनस है जो 3c के साथ लगी है इसको पहले लिख लो माइनस, तो बाकी का सेम -3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू 3c। ये माइनस यहां क्यों लेकर आए? क्योंकि आइडेंटिटी बनानी है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो इट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो स्क्वेयर ब्रैकेट लगानी है। a इज √2a प्लस b इज 2b प्लस c इज -3c, तो ब्रैकेट में लिखना है -3c, इसलिए आपने स्क्वेयर ब्रैकेट लगाई थी। देन स्क्वेयर ब्रैकेट अगेन a स्क्वेयर, सो इट इज √2a का होल स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, सो इट इज 2b का होल स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, सो इट इज -3c का होल स्क्वेयर माइनस ab, so √2a multiplied by 2b minus bc, so -2b into -3c plus ca, so c is what? -3c ब्रैकेट में multiplied by √2a, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट √2a प्लस 2b प्लस इंटू माइनस इज -3c इंटू √2a का होल स्क्वेयर बनेगा 2a स्क्वेयर प्लस 2b होल स्क्वेयर बनेगा प्लस 4b स्क्वेयर प्लस -3 का होल स्क्वेयर बनेगा 9c स्क्वेयर माइनस √2a इंटू 2b बनेगा 2√2ab, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2b इंटू 3c 6bc एंड देन माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 3√2ca. So this way this question will be solved. Now the next question is 12th question of the assignment. So here is question number 12. If x minus 1 upon x is equal to 2, then find x power 4 plus 1 upon x power 4. So let's do question number 12. x minus 1 upon x is equal to 2. क्या करना है इस क्वेश्चन में? दोनों तरफ आपने स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इट इज x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वेयर। लेफ्ट में आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये बनेगा a स्क्वेयर यानी x का होल स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 2s are 4। x और x को कैंसिल कर दो तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब आपके पास जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 6 आ गया, इसकी एक बार फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² और इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वेयर। नाउ ए के प्लेस के ऊपर एक्स स्क्वेयर है, बी के प्लेस के ऊपर 1/x² है, तो ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 1/x² का होल स्क्वेयर प्लस 2ab। सो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x² इज इक्वल टू 6 are 36। एक्स स्क्वेयर को कैंसिल कर दो, सो इट विल बी x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 36। और यहां से x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वेयर, ये देखो 13 क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू दी है 14 और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है? इट इज 14। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और निकालना क्या है आपको? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो ये लग गया इसका क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना आपने कि x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, यहां a प्लस बी का होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बना a² यानी x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x यानी 2ab। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर जैसा है वैसा ही लिख दो। क्या आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू है? यस, 14 पुट कर दो। यहां x कैंसिल हुआ तो प्लस 2 बचा था, तो 14 प्लस 2 कितना हुआ? 16। तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वेयर है वो 16 किसका स्क्वेयर है? 4 का, 4 का स्क्वेयर। तो देयरफॉर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई? दोनों तरफ का स्क्वेयर कट गया, 4। x प्लस 1/x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 4। अब आप दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, तो आप लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगाएंगे, a³ यानी x का होल क्यूब प्लस b³ यानी 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 का क्यूब इज 64। x और x को कैंसिल कर दो, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64। तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है ना, कितनी है? ये आपने अभी भी फाइंड आउट की थी 4, तो ये पुट कर दो यहां पर। तो इट इंप्लाइज x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64। तो ये बना x³ प्लस 1/x³ प्लस 12 इज इक्वल टू 64। तो यहां से x³ प्लस 1/x³ विल बी इक्वल टू 64 माइनस 12। इट इज 52 आंसर
फॉर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. So this question 14 is also very important. This is to be factorized. So let p of x is equal to x cube plus 13x square plus 32x प्लस 20. तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है. क्या है कांस्टेंट टर्म? 20. तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सेम तरह की स्टेपिंग चलेगी. फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 20 आर प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 भी फैक्टर होता है, माइनस 1 भी होता है, प्लस माइनस 2. अब सारे फैक्टर्स तो लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट फैक्टर होगा प्लस माइनस 20, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अब आपने क्या करना है, -1 वैल्यू यहां पुट कर देनी है. हम 1 भी कर सकते थे, लेकिन 1 से जो है वो p ऑफ x जो है वो 0 नहीं बनेगा. तो p ब्रैकेट में -1 मीन्स वी हैव टेकन -1 वैल्यू. तो यहां पुट करेंगे x की जगह -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. तो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वेयर इज +1, सो इट विल बी प्लस 13 minus 32 plus 20. Now 20 plus 13 is 33 and -1 minus 32 is -33. तो 33 minus 33 क्या बन गया? 0. तो आप लिखेंगे सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0. तो जब भी कोई नंबर लाइक p ऑफ -1 इक्वल टू 0 होगा तो फैक्टर बनेगा x प्लस 1. सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अच्छा, अगर यहां p ऑफ 1 होता तो आपने x माइनस 1 लिखना था इसका फैक्टर. सो दिस इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अब क्या करेंगे, नाउ वी विल डिवाइड p of x by x plus 1. क्यों करेंगे? ताकि हमें बाकी के फैक्टर्स मिल जाएं. सो वी विल डिवाइड p of x by x plus 1. तो p of x को डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन. दिस इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20. तो वी विल डिवाइड इट बाई x प्लस 1. एक्स क्यूब को x डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वेयर कोशेंट में आएगा. एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स स्क्वेयर. सो इट इज माइनस, चेंज द साइंस, माइनस. एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसल. 13x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर माइनस होगा 12x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20. अब आप 12x स्क्वेयर को x से डिवाइड करोगे तो प्लस 12x आएगा. 12x इंटू एक्स इज 12x स्क्वेयर. 12x इंटू प्लस 1 इज प्लस 12x. चेंज द साइंस, माइनस माइनस कैंसल. 32x माइनस 12x इज, this is 20x plus 20. 32 minus 12 is 2 minus 2 0, 3 minus 1 is 2. अब 20x को x से डिवाइड करो तो प्लस 20 आएगा. 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू 1 प्लस 20. चेंज द साइंस, माइनस माइनस. सो दिस एंड दिस कैंसल्ड, रिमाइंडर इज 0. अब आप लिखेंगे सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोशेंट प्लस रिमाइंडर.
तो इट इम्प्लाइज व्हाट इज डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू डिवाइजर इज x प्लस 1 into quotient is x square plus 12x plus 20 plus रिमाइंडर इज 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 नहीं रखेंगे और इसकी नॉर्मल फैक्टराइजेशन x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 20 के कोई दो फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पर 20 बनाए और ऐड करने पर x का कॉफिशिएंट 12 बने, दैट इज 10 and 2। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। 0 को ड्रॉप कर देना है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, x प्लस 1 देन स्क्वायर ब्रैकेट, इन दो में x कॉमन, x प्लस 10 इनसाइड, इन दो में प्लस 2 कॉमन, अंदर x प्लस 10, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 2 10 नहीं होता है। सो इट इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट x प्लस 1, इन अदर ब्रैकेट दिस x प्लस 2 and in one bracket x plus 10. So this way we have done the factorization. Now we will proceed for doing the last question of the assignment, that is question number 15. तो question number 15 है find the product by using the identity, suitable identity, this one. So let's start. The question is x minus 5y into x square plus 5xy plus 25y स्क्वेयर। तो x माइनस 5y सेम रहेगा, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, x स्क्वेयर को x का होल स्क्वेयर लिखेंगे, माइंड में बोलेंगे a स्क्वेयर, प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो आगे, प्लस 25y स्क्वेयर को 5y का होल स्क्वेयर कर दो और बीच में प्लस 2ab, सो 2 इंटू एक्स इंटू 5y। तो अगर 2 इंटू एक्स इंटू 5y करेंगे तब तो ये बनेगा 10xy, लेकिन हमें क्या चाहिए 5xy। तो क्या करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट x इंटू 5y, x इंटू 5y। तो ये आइडेंटिटी बन गई using identity a minus b into a square plus ab plus b square किसके बराबर होता है ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब मीन्स एक्स का होल क्यूब माइनस बी मीन्स वाई का 5y का होल क्यूब। तो ये बना एक्स क्यूब माइनस 125y क्यूब। तो ये ध्यान रखना है कि यहां इट सीम्स लाइक इट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बट इट इज नॉट, बिकॉज वी आर टू यूज सुटेबल आइडेंटिटी। x माइनस 5y सेम रहेगा और ये बना ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि अगर यहां 2 करते थे तो यहां 10xy बनता था, हमें चाहिए क्या 5xy। सो वी हैव मेड दिस आइडेंटिटी दैट a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब एंड इट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 125y क्यूब। So this was the last question of the assignment. So those who are watching the video of this assignment of polynomial, if you have really liked the explanation part, so do subscribe the channel and keep the notifications on to get more videos in future. If you want the full solution of any of other assignments or any of the solutions or any of the questions, so do comment
and like the videos. Thank you.